जीवन में कुछ ऐसे भी होते हैं लम्हे खास, जिनकी खुशबू और मानों को आ जाती है रास। मील का पत्थर बन जाता है वो लम्हा बिंदास, सिहरन सी छू जाती है जब होता है एहसास। पहला 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 पहला। ओके, मूविंग ऑन, आपने फाइनली कब डिसाइड किया कि हाँ अब मैं एक्टिंग ही करूँगा? At When third was year that? of college. Third year of college. Yeah. When Mr. Kumar was still coaching you. Yeah. Okay, and वो decision कैसे आया? It क्या was- it realization was थी? just, you know, there's a saying कि अगर आप अपने hobby को अपने career को बना सकते हो, if you can make your hobby into your career, you'll never work another day in your life. Right. So it was that thing because I was actually because मैं history honors में था, मैं civil services you know plan कर रहा था देना, उसमें भी काफ़ी interest था foreign service में जाना as a diplomat and everything. But then I realized कि जो passion है that's in acting, and of course I thought you know unless I do it then I'll always have that regret, you know, if only I had done this. तो आपने जब ये decision ले लिया, that was the first time you decided कि अब मैं बॉम्बे जाऊँगा? नहीं, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा मैं बॉम्बे जाऊंगा, उस वक्त मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक्टर बनना ही चाहता हूँ तो मैं एक ट्रेंड एक्टर बनना चाहता हूँ, अच्छी तरह से इसमें जाना चाहता हूँ। एंड एट दैट टाइम ऑफ कोर्स इंडिया में सिर्फ NSD था, लेकिन मैं NSD में इसलिए नहीं जाना चाहता था बिकॉज मैं अपने जो घर का एटमॉस्फेयर है उससे भी निकल जो नॉट बिकॉज आई वांटेड टू गो अवे फ्रॉम होम बट एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है। You want to get out of I that wanted shell. I wanted to get out of the protective atmosphere and do things on my own. Right. So that's why I had applied to a lot of places where you have to audition to get in. So there's एक institute है न्यूयॉर्क में, American Academy of Dramatic Arts. Okay. उसमें जाके मैंने audition दिया and I got in there. So I did, you know, I was there and you can say to support myself during that time मैंने काफ़ी कुछ किया. You know, I started as a telemarketer. You know, I was selling. That was your first job? That was my first job. Well, my first job actually था एक grocery store में cash register पर काम करना. ये कहाँ पे था? That was also in New York. Okay. You know, जब मैं acting school जा रहा था तो Saturdays पे मैंने वो करना शुरू किया. फिर थोड़ी सी और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो telemarketing शुरू किया. लेकिन उस काम में मैं ज़्यादा देर टिक नहीं पाया. You can say. Then I started hosting in a restaurant. Okay. लोगों को बिठाना and menu देना and all of that. And then I started working as a waiter in that restaurant because उसमें पैसे ज़्यादा थे. You know, tips के ज़रिए used to make much more money. तो बॉम्बे आने का विचार सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया था? बॉम्बे आने का विचार एकदम से आ गया बस. You know, ऐसा नहीं था कि काफ़ी टाइम से दिमाग में था. ये था बस कि यार ये plays I felt कि एक लिमिट सा बन गया था how far I could take it. Right. And I wanted to reach a larger audience. तभी मैं फिर बस एक दिन सोचा कि बॉम्बे जाना चाहिए एंड अपना सामान पैक किया और ट्रेन पकड़ कर आ गया. लेकिन एज एन एक्टर इतने ड्रीम्स लेकर आप आए कि अब कुछ करना है, तो तब जब आपने सिटी में एंट्री मारी तब वो फीलिंग कैसी थी? नहीं, मैं इतना फिल्मी हिसाब से नहीं आया कि ड्रीम्स लेके और कुछ करना है और Very कुछ दिखाना है. practical. Yeah, I was quite practical and I've always everything I've looked at as a journey. कि हर चीज़ का एक प्रोसेस और जर्नी होता है और वो सीढ़ी जो है वो आप एक एक रंग पे हर पैर रख के आप ऊपर चढ़ेंगे. मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि यार मैं एकदम से आके मैं स्टार बन जाऊँगा, धूम मचा दूंगा. Yeah. Wait for me with the red carpet. So I've never had that in my mind. That's also because of my personality, because I'm not extremely outgoing or talk about myself or hype myself up a lot, which is जो marketing एक necessary हो गई है आजकल, you know. तो वो भी वजह था कि मुझे मालूम था कि मैं अपने आप को hype करके कुछ नहीं बन पाऊँगा, कुछ performance दिखा के ही कुछ you know कर पाऊँगा. I started assisting Rahel Padamsee in her little actors group.
तो बच्चों को थोड़ा सा सिखाया वगैरह. So I started helping her, and then I started getting ads का काम मेरे पास आना तो आप शुरू हुआ. मॉडल बन गए. या मैं मॉडल बन गया. आपका न्यूयॉर्क में 3 साल पहला- ट्रेनिंग करने के बाद आई केम टू Model बॉम्बे बन एंड बिकेम अ मॉडल. तो आप पहला मॉडलिंग ऑडिशन या फिर इट जस्ट केम योर वे? यू नो जैसे बाकी सब ने किया था, बॉम्बे आके मैंने अपने फोटोग्राफ्स ऑफ कोर्स हर जगह जाके बांटे. और जो मेरा एक पहला ऐड था वो था ब्रुक बॉन्ड A1 चाय ओह for Mad Films, and Mr. Piyush Pandey was the creative on that. Okay. And I still remember I did a small, I think I forgot if it was a test कुछ बोलना था या नहीं, मैं भूल गया, लेकिन it was just like a video test, and he chose me for that, and I played, and it was a filmy ad because it was about this police inspector and everything, and it was like a little Rajnikant style जो अपने डंडे को घुमाता है and everything, you know, but it was good fun. You know, and I was, the main surprising thing of course was the amount of money, if you look at it now, was not much. But I just expected a little amount, and when they told me ki, you know, it's this much, are you okay with that? I was like yeah. yeah. तो आपकी पहली मूवी में आपने एक नेगेटिव किरदार निभाया. लोग जो हीरो बनने के लिए आते हैं थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं क्योंकि दैट वाज रिलीज्ड a while back, and अब शायद विलन्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, लेकिन उस टाइम अ विलन वाज अ मस्ट. तो अगर आपको विलन की जो टैग दिया गया था उस टाइम पर, यू वर ओके विद दैट? टैग नहीं लगा था ऐसा कुछ, लेकिन उस वक्त ये ज़रूर था कि जो नेगेटिव हीरो का वो चला हुआ था, यू नो, सो उस हिसाब से मैंने वो फिल्म किया था, बिकॉज क्वाइट अ फ्यू पीपल एट दैट टाइम वर डूइंग यू नो नेगेटिव लीड्स. तो उस हिसाब से मैंने वो फिल्म किया था. द एक्सपीरियंस वाज क्वाइट एंजॉयबल. आई रियली liked Mr. Sunny Deol's acting. I respected him a lot. I thought he was really good as a director. Unfortunately, film चली नहीं. फर्स्ट शॉट याद है दिल्ली का? Yeah, first shot याद है. It was a club scene. A club scene, and I remember Bobby was standing and looking at me. कि how is he gonna do? And afterwards he came and shook my hand. He was really happy. He was like, you know, I'm so glad you're on board with us, and we're really happy. And a couple of the assistant directors came and said, you know, we think you're overqualified for this role, but you know, now that you're here, we're gonna. दिल्ली खत्म होने के बाद आपने रुख किया मॉनसून वेडिंग की तरफ. मीरा नायर के साथ आपको काम करने का मौका मिला. वो आपकी ज़िंदगी की अभी तक की सबसे बड़ी हिट है. वेनिस फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने एक अवार्ड भी जीता, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स. तो हाउ वाज दैट फीलिंग? Oh, that was amazing. वो जो फीलिंग था वो काफ़ी अमेजिंग था, बिकॉज ऑफ कोर्स सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देश में पहले उसका, बाहर के देश में जो फीडबैक है वो बाहर मिला हमको पहले. जैसे जब हम वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गए तो हमारी जो फिल्म थी बहुत ही छोटी फिल्म थी, किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं था. यू नो, एक सबके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, हमारी एक छोटी सी पोस्टर एक जगह में कहीं होगी, फिल्म क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं था. लेकिन आफ्टर लोगों ने जब उसको देखना शुरू किया, जब बोथ द प्रेस एंड द पब्लिक परफॉर्म जब शोइंग्स हुए, उसके बाद बड़ा अमेजिंग फीडबैक मिला. एक बार हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस होटल जा रहे थे, एंड कुछ लोगों ने जो बैठे हुए थे तालियां बजानी शुरू की. तो हमने सोचा कोई हॉलीवुड स्टार वगैरह होगा, हमने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया कि कौन है ये, यू नो, हु इज, you know, honestly we thought there were some big Hollywoods, and then they started saying monsoon wedding and all of that, so you're like, oh, it's for us. So you know, it's a nice feeling. तो मॉनसून वेडिंग का पहला शॉट क्या था आपके लिए? Monsoon wedding का पहला शॉट, yeah, I'm just trying to recollect, was actually you know, जब हम आते हैं engagement के लिए गाड़ी में and everything, that was the first shot, yeah. खोसा घोसला आपकी एक और acclaimed फिल्म है. तो जब आपने उसकी स्टोरी पहली बार सुनी, how was your reaction? First of all, मैं काफ़ी सरप्राइज था कि ऐसी कहानी हमारे हिंदी इंडस्ट्री में बन रही है, बिकॉज इतनी इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ी सी अलग बट एंटरटेनिंग मूवी थी. यू नो, ऑफ कोर्स अब हम बैठ के बोल सकते हैं इट्स अ कल्ट मूवी एंड इट्स नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म एंड एवरीथिंग, बट एट दैट टाइम
वो स्टेप लेना है वो उस कन्विक्शन के साथ यू नो काफ़ी मुश्किल था. सो दैट्स वाई माई रिस्पेक्ट फॉर दिबाकर वॉज अ लॉट, एंड ईच एंड एवरी पर्सन जो एक्टर उस फिल्म पे आया दिबाकर के लिए काफ़ी वो था, यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग फॉर हिम. तो जब ये मूवी नेशनल अवार्ड विनर बनी और आपके पास ये न्यूज़ पहली बार आई, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या रिएक्शन था? मैं घर पे था और मेरे पास जो राइटर थे इस फिल्म के जयदीप साहनी, उनका SMS आया. अच्छा. एंड ऑफ कोर्स मैं काफ़ी स्केप्टिकल किस्म का इंसान हूँ, स्पेशली इस इंडस्ट्री में होके कि जो लोग डिज़र्व करते हैं यूजुअली उनको कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे, यू नो अपने आप को हाइप करके एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यू नो तभी अवार्ड्स मिलते हैं हर किस्म के. तो एक ऐसी फिल्म को जो डिज़र्व करती थी मेरे हिसाब से, उसको ये मिल जाना was quite surprising but very satisfying. You know कि वो जब होता है कि एक मेहनत करके जो उसका फल मिलता है वो बहुत ही satisfying होता है. So you know the national award was like the icing on the cake.